So this is the second part of SST chapter Natural Disaster. Topic: How to be safe during earthquakes. Earthquake के समय कैसे सेफ रहा जा सकता है. Learning outcomes: students will be able to demonstrate how to be safe during earthquakes. Teaching strategy: discussion and mock drill. Textbook, board and chalk instructions. Initiate a discussion by asking the students the following questions. What happens during an earthquake? Help them reach the answer. Building collapse, trees and poles fall down. Should we stay away from buildings, trees and poles during an earthquake? क्या जब अर्थक्वेक के समय हमें किसी बिल्डिंग के पास जाना चाहिए कि उसकी हेल्प लेनी चाहिए, किसी ट्री के पास जाना चाहिए, पोल्स के पास जाना चाहिए जो गिर सकता है? शुड वी स्टे, या हमें खड़े रहना चाहिए बिल्डिंग से, ट्रीज से, पोल से अर्थक्वेक के समय? वॉट एल्स कैन बी डन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? हैव देम थिंक अबाउट इट एंड गिव देयर थॉट्स. Write down their thoughts on the board, and on the basis of the discussion tell them that we should quickly move to an open area and stay away from buildings, vehicles and electric poles. If indoors, we should move away from glass windows and heavy objects that may collapse and hurt us. We should avoid using lift and electric gadgets. We must cover under a wooden table or bed to protect ourselves from the falling rubble. हमें इलेक्ट्रिक पोल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स क्या इन सबको ओपन करके कहीं सेफ जगह पे जाना चाहिए? We should move away from glass window and heavy objects. हमें heavy objects और glass window से दूर हो जाना चाहिए, because क्योंकि वो हमें hurt कर सकते हैं. We should avoid using lift and electric gadgets. हमें avoid करने चाहिए electric gadgets का या lift का. एंड वी मस्ट कवर अंडर अ वुडन टेबल. हमें एक वुडन टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए. और बेड टू प्रोटेक्ट थ्रू आवरसेल्फ फॉर द फॉलिंग रबल. नाउ आस्क द स्टूडेंट्स टू डू मॉक ड्रिल इन द क्लासरूम. इन दिस आस्क देम टू इमेजिन that an earthquake has occurred and they have to find a safe place within the classroom to protect them from the shaking of the earth. Before they start the drill, give the following instructions. Do not lose your calm and create panic. हमें उस समय हमें उस समय अपना आपा नहीं खोना चाहिए और हमें पैनिक नहीं होना चाहिए. हमें शांत रहना चाहिए. Avoid pumping into one another. Encourage them to hide under their desk or table and make the students sitting towards the window seat move away from the window. हमें विंडो सीट पर नहीं जाना चाहिए. हमें डेस्क के या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए और दूसरे स्टूडेंट्सों को एनकरेज करना चाहिए. Ensure that the discipline of the class is maintained during the drill. After the drill is over, tell the students about seismometer and Richter scale. जो अर्थक्वेक की वेव्स आती हैं तो उनको किसके थ्रू मेज़र किया जाता है? सिस्मोमीटर एंड रिक्टर स्केल. कि वो अर्थक्वेक कितना हैवी था या कितना लो था. नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्केनो. स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द मेन पार्ट्स ऑफ द वॉल्केनो एंड आइडेंटिफाई द 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. वॉल्केनो के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, सेकंड डिस्कशन एंड टीम वर्क. ये टीचिंग स्ट्रेटजी है. एंड नेक्स्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड, बोर्ड, चॉक, मार्कर, वेब सपोर्ट, टेक्स्ट बुक, अर्थन पोर्ट्स and shaped are required colors. Instructions: show the students the following video on YouTube.
ये यूट्यूब की लिंक है जिसमें आप इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। Show the first 60 seconds of the video and ask the students the following questions. What did you see in this video? They will describe the video. Write down their response on the board. Have a discussion over their responses. Thereafter, tell them that they saw the footage of a volcano. इस वीडियो को देखने के बाद आपको उसमें डिस्क्राइब करना है और अपने रिस्पॉन्स लिखने हैं बोर्ड पर। देयर आफ्टर टेल देम दे सॉ द फुटेज ऑफ द वॉल्केनो। ये डायग्राम की हेल्प से अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जो सबसे ऊपर जो आपको दिया है ऐश एंड गैस क्लाउड, ये जो वॉल्केनो जब नीचे से आता है तो ऊपर जो धुआं धुआं आता है उसको बोलते हैं ऐश एंड गैस। ऐश धुएं और गैस के कारण वो क्लाउड बन के बाहर आता है। और जो उसके नीचे होता है जो क्रेटर, जिस होल से लावा बाहर आता है उसे क्रेटर बोलते हैं, ये होता है क्रेटर। और इसके नीचे साइड वेंट। साइड वेंट जब कोई दूसरी तरफ से वॉल्केनो का लावा बाहर आने लगे उसे बोलते हैं साइड वेंट। और ये जो लावा फ्लो हो रहा है, ऊपर से लावा बहता हुआ आ रहा है, जो लावा अंदर से आ रहा है, इसे बोलते हैं लावा फ्लो। फिर बीच में आप देख रहे हैं लिखा है वेंट। वेंट मतलब ये इस जगह से लावा बाहर आ रहा है, उसे बोलते हैं वेंट। और फिर सबसे नीचे आप देख रहे हैं मेग्मा चेम्बर। मेग्मा चेम्बर जहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है, जो बिल्कुल इसका नीचे जो इसका बॉटम पार्ट है, उसे बोलते हैं मेग्मा चेम्बर। एंड लेफ्ट हैंड साइड वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ये जो छोटे छोटे जो बॉम्ब्स निकल रहे हैं बाहर की तरफ, उन्हें बोलेंगे वॉल्केनिक बॉम्ब्स। एंड उसके नीचे सिंडर्स एंड लावा लेयर्स। ये जो ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं लावा लेयर्स, ये लावा की लेयर होती हैं। विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द पार्ट ऑफ अ वॉल्केनो एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट ऑन द बोर्ड। So there is the three parts of the volcano: active volcano, doormat volcanoes, and extinct volcano. With the help of the flow chart, tell the students about the three types of the volcano by giving example. Ask them to look at their pictures of various mountains. Give on page 344 of the textbook for reference. Also tell them about माउंटेन कारकाटाओ इन इंडोनेशिया। जो माउंटेन है, माउंटेन कारकाटाओ, ये इंडोनेशिया में है। इसके बारे में आपको डिस्कस करनी है और इसके बारे में आपको देयर आफ्टर टेल देम टू कॉपी द फ्लो चार्ट इन देयर नोट्स बुक। और आपको ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में भी आपको ड्रॉ करना है। Divide class into small groups and ask all the groups to prepare a model of the main parts of the volcano with the help of the earthen pot and colors. In this, they will turn the pot upside down so that the mountain of the pot will be at the bottom and small hole will be at the top. Now they will color the pot and label it according to the diagram with the textbook. टेक्स्ट बुक में आपको इसको कलर करना है। ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल कवर द नेक्स्ट वीडियो।